because 2024 was a roller coaster for me, like emotionally, mentally, physically. I never thought I'll be sitting and making videos. मैंने कुछ decisions जो life में लिए वो क्यों लिए? What made me decide to leave my job when my salary was good? मुझको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है. That this was a very tough time for like both of us. तो I got good gratuity amount. जो decision था वो भी हमने बहुत डरते डरते लिया था. When Kush also lost his job. When it comes to financial problems, there is no one. I miss my friends a lot. There is some part of office जहाँ पे एकदम शांति रहती है, कोई नहीं बात कर रहा होता है. And the time I entered, finished, Shanti Bhang. I think they left off my office because that is a horrible lift. What's up cuties, welcome or welcome back to my channel. And if you are new to my channel or watching this face for the first time, then hi, my name is Nidhi and I make videos related to fashion and beauty, and sometimes I do vlogging and some fun vlogs and all. So yes, if you like such videos, then don't forget to subscribe this channel, and if you like any of my video, please hit the thumbs up icon. And this is my Instagram handler somewhere. You can go there and follow me there as well, so you don't miss out any of the content. And first of all, Happy New Year, guys. It's a new beginning with new thoughts and everything. Like, I never thought I'll be sitting and making videos at this point of time, but you never know. So yeah, let's hope this year will be good luck, because 2024 was a roller coaster for me, like emotionally, mentally, physically, everything. Like har tarah se it was a challenging year for me. So I am hoping that 2025 will be a great year for me. Touch wood. So for today's video, I have some thoughts जो मुझे लगा, क्योंकि अब मुझे लोग थोड़े से देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, तो आई थॉट कि मे बी कुछ लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं, लाइक ऐसा क्यों हुआ, मैं कहाँ से आ गई सडनली, एंड व्हाई डिड आई चूज दिस यूट्यूब थिंग एंड एवरीथिंग. सो आई थॉट व्हाई नॉट सिट डाउन एंड डू थोड़ा सा टॉकेटिव वाला वीडियो. So yes, here I am. I will try to tell you everything about my life, what's going on right now, और मैंने कुछ decisions जो life में लिए वो क्यों लिए, and yeah, everything about my life, like updated one. So yeah, I'll be answering few questions. So I have wrote down some questions कि शायद ये आपको जानना हो. I don't get a lot of comments or DMs or anything, but yeah, I wanted to do this from a long time, because I know कि कुछ लोगों के दिमाग में होंगे questions, but still they don't comment, so I don't know. So I just wanted to connect with you guys more, so that's why I have this video. So let's begin. So first question is, what made me think, like what made me decide to leave my job, which was like very good. So first of all, I was working in a French company, and मैं नाम नहीं लूंगी. I'll just say about myself and not about my company more. So yes, it was a French company, that's it. And I was working there as a senior illustrator and a team leader, which was a very good opportunity for me. Salary was good. Career point of view, say it was a very good job. I was quite satisfied. But as I told you in my very first intro video, जो मैंने जुलाई में किया था, कि मेरे बैक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लाइक आई हैव हेंच्ड बैक, तो जिसकी वजह से मुझे अभी आई थिंक आई एम क्रॉसिंग 30, जो मैंने क्रॉस कर लिया आई थिंक बहुत पहले, तो उसकी वजह से आई थिंक अभी एज के साथ वो थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम दे रहा है. लाइक आई एम हैविंग मोर बैक पेन दिस टाइम. तो क्योंकि आई एम doodling on Pentab continuously and using my Pentab keyboard and mouse, these
are the things. So I think it's making my back hurt more because continuously I'm sitting 8 hours in one position, and there are breaks, but still जब भी आप कंटिन्यूसली बैठ रहे हो 1 घंटा 2 घंटा या 3 घंटा भी, तो भी आई थिंक आपके बैक में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट पड़ेगा जो कि मैंने फील किया. एंड फॉर दैट आई नीडेड अ फिजियोथेरेपी, क्योंकि ये इशू मुझे पहले भी हो चुका है जब मैं दिल्ली में थी और जॉब करती थी. तो उस टाइम पे इट वाज क्योरेबल, लाइक इतना नहीं था बट इट वाज वेरी पेनफुल, एंड आई यूज्ड टू गो टू फिजियोथेरेपी एवरी डे. एंड कुछ इसमें टाइम स्लॉट्स होते हैं, लाइक 1 घंटा या आधे घंटे या इस तरह का टाइमिंग होता है, एंड यू हैव टू बी देयर एंड गेट थेरेपी. तो वो करना था मुझे, जिसके लिए जॉब के साथ साथ वो चीज़ करना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली माई ऑफिस वॉज 10 to 7, और 7 बजे के बाद मैं हॉस्पिटल्स नहीं जा सकती थी क्योंकि सारे डॉक्टर्स चले जाते हैं. तो इट वॉज अ वेरी टफ कंडीशन फॉर मी कि कैसे मैनेज हो. आई ट्राई टू डू इट फॉर अ मंथ, बट then I saw that I have, if I'm like deciding to go back to my work, it will hamper again, like I will get it again, so I have to get it properly done. And yeah, I still have some pain जो I think थोड़ा टाइम से जाएगा. तो yeah, that was the main reason I left my job. And yeah, I miss few things, but yeah, that was the main reason why I left my job, nothing else. Okay, the next question is, how did you uh, manage financially to do this transition and everything? So this was a very tough time for like both of us, like husband wife. And yeah, it was very crucial months, I would say, because I'm not earning now. But since I have worked 5 plus years, like 5.6 years in that company, so I got good gratuity amount, which was a like good amount. तो उससे हमारा काफ़ी हद तक बैलेंस हो गई थी चीज़ें. बट या देयर वर सम थिंग्स जो अच्छे से मैनेज नहीं हो पाई, लाइक हमारा भी पहला ही टाइम था, एंड ये जो डिसीजन था वो भी हमने बहुत डरते डरते लिया था कि इफ़ आई लीव माई जॉब तो कैसे मैनेज करेंगे. बट आई हैव टू डू इट. इवन आई लव टू डू, लाइक आई लव टू बी वर्किंग. तो मुझको बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है. दैट्स व्हाई आई एम डूइंग यूट्यूब, क्योंकि घर से मैं वो ही कर सकती हूँ. आई डोंट वांट टू सिट एंड डू स्क्रिबलिंग एंड ऑल, क्योंकि वो पोस्चर में मुझे ज़्यादा देर तक नहीं बैठना है. टेक्निकली आई एम नॉट अलाउड टू सिट फॉर लॉन्गर टाइम. तो दैट्स व्हाई आई चोज यूट्यूब. एंड या अगर हम ऐसे बोलें तो भी गलत नहीं होगा कि येस, आई एम हियर फॉर अर्निंग एज वेल, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मुझे मेरा यूट्यूब मोनेटाइज हो एंड आई हैव गुड अर्निंग एट लीस्ट फॉर माई सेल्फ. बिकॉज राइट नाउ फॉर वन पर्सन बैंगलोर में रहना बहुत मुश्किल है, लाइक इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. बट स्टिल वी आर मैनेजिंग, सो it's well managed. Next thought was, what was the biggest challenge or fear I faced while taking this decision? So I would say I think it was financial only, because Bangalore is way too expensive and the rent here is too expensive, and हम rent पे ही रहते हैं. और अगर एक बंदे पे सारा बर्डन आएगा, इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट, जो कि अभी हो रहा है, आई कैन से दैट. बट या वी आर मैनेजिंग. बट दैट वाज द बिगेस्ट फियर कि हम सर्वाइव कैसे करेंगे. एंड द वेरी बैड सिचुएशन हैपन व्हेन कुश ऑल्सो लॉस्ट हिज जॉब इन दिस टाइम ओनली. तो जून में नहीं, तो मई में मैंने जॉब छोड़ी थी. लाइक 31st May वॉज द लास्ट वर्किंग डे आई सर्व्ड इन माई ऑफिस. एंड देन जुलाई 24th or 24th, I think, yeah, 24th of July, Kush lost his job. So that was a very like very difficult situation, because हमने सोचा था कि एक की तो है जॉब,
but that time it was so fucked up and we were so clueless कि अभी क्या करें. Thankfully मेरा जो gratuity का amount था that was there, but still it was very difficult because he was not able to get any job for 4 months I guess. And after 4 months he got the job. I think अक्टूबर या नवंबर में ही उसको जॉब मिली है अभी. तो touchwood everything is going fine. We managed to do all the finances घर का और सब कुछ करने में थोड़ा बहुत हमें पावर मिल रही है अभी, वापस एनर्जी आ रही है. बट या इट्स अ वेरी फियरफुल सिचुएशन बिकॉज आप अकेले रह रहे हो इतनी दूर. देर इज नो वन टू सपोर्ट यू. अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आई थिंक when it comes to financial problems there is no one, like very few people, yeah, like you can trust your mom dad. उसके अलावा I don't think कि there is anyone who you can rely on with this matter. So you have to be very, very, very careful about this. Next question is, did you face any criticism or doubt from friends or family? How did you handle it? तो आई थिंक फ्रेंड्स वर क्वाइट सपोर्टिंग क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी हालत क्या है. एंड मैं हमेशा उनके पास ही जाके रो रही होती थी कि ओ माय गॉड आई हैव दिस मच पेन, दैट मच पेन. और मैं मतलब वर्किंग टाइम पे मैं हमेशा पिल्स खाती रहती थी, पेन किलर्स, विच इज नॉट गुड. बट या दे नो एवरीथिंग फ्रॉम द बिगिनिंग कि मेरा हालत क्या था. तो आई थिंक दे नो एंड दे डिड नॉट जज मी फॉर दिस. बट या दे वर सैड दैट आई एम लीविंग बिकॉज हमारा एक सर्टेन ग्रुप था एंड एवरीथिंग वाज सो नाइस. एंड जब भी आपके फ्रेंड्स होते हैं तो थोड़ा सा बाकी सिचुएशंस हैंडल करने में थोड़ा इजी होता है. तो या बट आई थिंक फैमिली के साइड से भी ऐसा कुछ इशू नहीं था. मेरे घर वालों की साइड से एवरीथिंग वाज फाइन, कुछ भी फाइन था. ही वाज आल्सो फाइन. ही वाज लाइक इफ यू कांट डू इट देन डोंट डू इट. आई वोंट फोर्स यू. इट्स योर डिसीजन एंड ऑफ द डे. तो दैट्स how we decided to left the job and here I am. Next question is, what do you miss the most and least about your job? Okay, so this is very interesting. I think I miss my friends a lot and वो जो क्योटिक सा माहौल होता है ना, ये भी करना है, ये भी करना है. आई लव दैट. लाइक आई लव बीइंग बिजी. मुझे काम करते रहना अच्छा लगता है. बट इट वाज नॉट दैट मच प्रेशर ऑल्सो इन माई कंपनी. तो इट वाज वेरी लाइट एंड we used to play a lot of songs. So I was the DJ in my office. So मेरे system पे I had this long as a speaker in my system and I used to play a lot of songs. Like everybody used to tell me, Nidhi play this one, Nidhi play this one, this song maybe. So they used to share their suggestions and I used to play songs. And I was the one who, I think I used to talk to everyone, like literally everyone. There was no single person, like there is some part of office जहाँ पे एकदम शांति रहती है, कोई नहीं बात कर रहा होता है. And the time I entered, finished, शांति भंग. So I think that is the most like loved part. And my friends also, like उनसे बातें करना, चिल रूम में बैठना. वी हैड अ चिल रूम एंड वहाँ पे हम काफी देर तक बैठते थे. इफ यू आर नॉट feeling well so you can go there and rest, and after lunch we used to go there and sit in AC. Sometimes we slept also there too. So that's all the memory I have. And so many things, like we used to have like so many activities and dinners and everything. I miss those things. And what I don't miss, I think the lift of my office, because that is a horrible lift. I'm happy that I don't have to take the lift again. But yeah, apart from that, I think everything is fine and least जैसा कुछ नहीं है. I loved everything. So yeah. So the next question is, what challenge do you face as a beauty and fashion content creator?
तो देखो, अभी तो आई एम नॉट दैट बिग, मे बी, टचवुड, कभी भगवान ने चाहा तो आई विल बी, बट एंड आई वुड लव टू बी, बट अभी इतना कुछ नहीं है. लाइक आई एम नॉट फोर्सिंग माई सेल्फ टू डू इट. लाइक जब मेरा मन करता है तब मैं शूट करती हूँ, एंड इट्स अ वेरी लाइक नाइस प्रोसेस कि जब आपको टाइम है, जब आपका मन हो रहा है, आप कैमरा उठाओ और बैठ जाओ, एंड देन यू हैव टू टॉक टू योर कैमरा एंड एवरीथिंग. आई थिंक दिस इज द बेस्ट पार्ट आई फील एज अ कंटेंट क्रिएटर, कि आपको कोई बाउंडेशन नहीं है. बट या it is a hard work, because editing a video, doing a thumbnail, and then putting music and description, keywords, tags, and everything, oh my god, this is too much work. I never thought I'll be doing this, but I think I'm quite enjoying it, because it's not that much pressure. और मैं ऐसे नहीं करती हूँ नहीं मुझे शूट करना ही करना है, because I know the market is full of content creators these days, so I don't want to be a part of that rat race. So I'm very gentle on myself. Like when I feel like I have to shoot, then I'm shooting. That's it. So there is no competition as such. मैं बहुत ही सिंपल तरीके से और धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहती हूँ. तो मुझे ऐसी कोई जल्दी नहीं है कि मैं और ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ. और एक तो मुझसे होता भी नहीं है. लाइक माई बैक इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दिस मच वर्क. तो यस, लाइक अभी भी मैं बैठी हूँ ना, तो आई हैव नो सपोर्ट बैक पे, तो आई एम कीप मूविंग माई सेल्फ टू बी अ लिटिल कंफर्टेबल, बिकॉज इट्स वेरी uncomfortable for me to sit and shoot like this. But I think it's a very fun process कि आप अपने मर्जी के मालिक हो, and I'm loving it currently, because किसको नहीं अच्छा लगेगा. Okay, the next question is, what advice would you give to someone wanting to follow a similar path? देखो, मैं अभी उस स्टेज पे तो हूँ नहीं कि मैं किसी को एडवाइस दूं, बट या आई वुड से कि अपने मन की करो. बिकॉज अभी मैं अपने आप को अगर 4-5 साल पहले देखती थी, तो जब मैं यूट्यूब देखती थी कि अरे वाह ये लोग वीडियो बना रहे हैं लोग, तो मैं सोचती थी कि मैं भी कर सकती हूँ, बिकॉज मेरा बहुत मन था करने का ये. एंड मैंने ट्राई भी किया था, ऐसा नहीं कि मैंने ट्राई नहीं किया, बट जॉब के साथ साथ मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था, बिकॉज आई थिंक मेरे प्रोफेशन के साथ ये प्रॉब्लम है, बिकॉज आई हैव टू ड्रॉ, आई हैव टू सिट लाइक कंटिन्यूसली. अगर ऐसा कोई जॉब होता जिसमें कॉलिंग करनी है या कुछ ऐसा, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल सकती थी आई थिंक. बट सिंस आई हैव टू ड्रॉ एंड स्केच एंड डूडल एंड ग्राफिक्स एंड ऑल, ये सब करना था, तो आई थिंक आई हैव टू सिट एंड बी देयर फॉर 8 hours फॉर माई कंपनी. तो आई थिंक उसके साथ ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए. तो आई थिंक अगर आपका दिल कर रहा है कुछ करने का, अगर आप स्टूडेंट हो या कॉलेज गोइंग, मतलब इस टाइप के, या कोई आप डिप्लोमा कर रहे हो और आप जॉब नहीं कर रहे हो बेसिकली, तो आई वुड से कि प्लीज, अगर आपका दिल कर रहा है करने का, तो प्लीज गो अहेड, ट्राई करो. और डोंट रश फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि आई नो देर आर सो मेनी पीपल, आपको शायद 2-3 या 4 महीने में कोई देखेगा भी नहीं इतना. तो अगर आप उस माइंडसेट से बैठ रहे हो कि नहीं नहीं हो जाएगा, इतने महीने में तो हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि आप सरवाइव कर पाओगे. बिकॉज तो फिर आई थिंक आपको कहीं ना कहीं ये डिसअपॉइंटमेंट फील होगा कि मैंने अच्छा इतना टाइम लिया था, उसमें नहीं हुआ, मे बी आई एम नॉट गुड एंड दिस एंड दैट, ऑल द नेगेटिविटी यू विल टेक इन. तो आई वोंट सजेस्ट कि आप बहुत रश करो, अपने आप को ना प्रॉपर टाइम देना. लाइक मैंने भी अभी जुलाई में स्टार्ट किया है, तो आई एम नॉट रशिंग, बिकॉज आई नो माई कंडीशन, एंड इफ आई रश तो मे भी चीज़ें खराब हो जाए, या मेरी हेल्थ खराब हो जाए, या फिर यूट्यूब भी अच्छा ना चले. तो आई एम नॉट पुशिंग माई सेल्फ वेरी हार्ड, बट या आई ट्राई टू डू लाइक एज मच एज आई कैन. बिकॉज सी, अभी मुझे घर के काम भी करने होते हैं, और खाना पीना सब कुछ करने के बाद, उसके बाद मैं सेट डाउन होके फिर तब वीडियो बनाती हूँ. और कभी कभी होता है कि मेरे पास आइडियाज ही नहीं होते हैं, तो देन आई सिट डाउन एंड थिंक एंड ट्राई टू प्रोसेस कि अभी नया क्या बनाऊँ.
तो उस सब के लिए भी टाइम चाहिए। तो मेरे पास अपना जो हाउस चोर्स होता है उसको खत्म करने के बाद ही मेरे पास टाइम होता है। तो आई नो कि मैं इतना कर सकती हूँ, एंड आई ट्राई माई बेस्ट टू रीच वेर आई कैन सी माई सेल्फ कि हाँ दिस इज वेरी गुड position for me and I'm doing very well. So I'm not pushing myself. I'm going very slow, I know. And आई थिंक सब्सक्राइबर का भी ऐसे ही है कि कभी एक आते हैं, कभी 5 आ जाते हैं एक साथ। तो कभी कभी आपको ऐसे हो सकता है बार नीचे जाता हुआ भी दिखे और कभी कभी बहुत अच्छा ऊपर जाता हुआ भी दिखता है। तो आई थिंक दिस इज द पार्ट ऑफ द जर्नी। तो इफ यू आर प्रिपेयर फॉर दिस देन आई थिंक गो अहेड। अगर आपके जहाँ से आवाज आ रही है कि you should do it, then I think you should give it a try and give yourself some time, first of all, like 6 months or maybe a year. Year is a very good timing क्योंकि उसमें आपके माइंड में ही रहता है कि हाँ इतना टाइम तो है मेरे पास, एंड इफ थिंग्स आर नॉट गोइंग वेरी फास्ट देन आई थिंक आपके पास उतना टाइम तो है कि आप एक साल में इतना अचीव कर लोगे। तो आई थिंक 1 year का टाइम इज a maximum time limit you should carry with you. Okay, the next question I have, actually this is my question. So what do you hope to achieve in the next few years as a content creator? फर्स्ट ऑफ ऑल अभी तो देखो मेरे इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है, तो मेरा पहला जो एम है दैट इज टू रीच 1000 सब्सक्राइबर्स। उसके बाद देखते हैं। आई एम नॉट थिंकिंग लाइक वेरी बिग बिग थिंग्स, बट या आई एम थिंकिंग कि अच्छा चल जाए मेरा यूट्यूब और मेरे को थोड़े से पैसे आने लगे लाइक मेरे लिए ही। तो आई थिंक दैट विल बी अ वेरी गुड start for me, and then I think I can see myself doing this more, क्योंकि नहीं तो फिर I think I have to go for a job as well, but I am not going to leave YouTube because मैंने जब ये करके देखा है तो मुझे काफी पसंद आ रहा है फ्रैंकली स्पीकिंग। तो मैं छोड़ने वाली तो नहीं हूँ। अगर मैं जॉब करूंगी तो लेट्स सी, अगर मुझे कुछ पार्ट टाइम मिलता है बाद में, अभी नहीं, अभी तो मैं कुछ भी नहीं करने वाली। बट या आई होप दिस ईयर विल बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मी एंड आई विल गेट व्हाट आई वांट। तो आई थिंक इट विल बी अ गुड स्टार्ट, और मुझे जॉब ना करनी पड़े वो ज्यादा बेटर है। आई एम सीइंग माई सेल्फ गोइंग अ लिटिल अप इन द गेम। तो लेट्स होप कि मैं एटलीस्ट इतना अचीव कर पाऊँ कि मेरे को थोड़ी सी अर्निंग आने लगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि आई थिंक दैट इज द मेन थिंग जो मुझे अभी यूट्यूब से थोड़ा एक्सपेक्टेड है। देन आई विल पुश माई सेल्फ अ लिटिल मोर टूवर्ड्स यूट्यूब एंड मैं और बेटर करने की कोशिश करूंगी। तो यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू डील विद द प्रेशर ऑफ बीइंग कंसिस्टेंटली क्रिएटिव? देखो, ये तो मैंने पहले भी बोला कि आई डोंट पुश माई सेल्फ अ लॉट, बिकॉज मुझे पता है कि मेरी बाउंड्रीज क्या हैं, कितना मैं पुश कर सकती हूँ। और आई डोंट वॉन्ट टू बी हार्श ऑन माई सेल्फ कि नहीं नहीं मुझे करना है एंड देन फिर कुछ खराब हो जाए उससे, मैं वो नहीं चाहती हूँ। तो आई एम गोइंग वेरी स्लो और आराम से जितनी चीजें हो सकती हैं मैं उतना करने की कोशिश कर रही हूँ। नथिंग सच एज लाइक मेरी लाइफ में अभी ऐसा कुछ प्रेशर जैसा कुछ है नहीं। मैं बहुत चिल होके काम करती हूँ, बहुत मजे से काम करती हूँ, दैट्स इट। ओके, सो द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स अ टिपिकल डे लाइक फॉर यू नाउ? तो ओके, तो या आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग चेंज आई हैव फेस्ड इन माय लाइफस्टाइल, बिकॉज पहले मेरी जो लाइफस्टाइल थी इट वाज वेरी रनी, लाइक सुबह जल्दी उठो, देन यू हैव टू रश, गेट रेडी एंड लुक फॉर ऑटो। ऑटो बुक करना बैंगलोर में इज लाइक तुम्हें 1 घंटा चाहिए, 1 घंटे का मार्जिन लेके चलते थे हम घर से ऑफिस तक पहुंचने का, इंक्लूडिंग ऑटो बुक करने का टाइम आधा घंटा एक्स्ट्रा। तो सोचो हम कितनी जल्दी रेडी होते थे हम लोग। लाइक बैंगलोर में रहने का मतलब यही है दैट यू हैव टू रश, क्योंकि ऑटो नहीं मिलेगा। ओह माय गॉड, इट्स अ ह्यूज मस्किटो।
बैंगलोर में अगर हो तो आपको आई थिंक इतना मार्जिन लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज इट्स टू डिफिकल्ट टू ट्रैवल दीज डेज, ट्रैफिक इज टू बैड. तो आई थिंक it's a very big change I have in my life now, because now I can woke up आराम से, and चाय कुछ बनाता है सुबह की, तो मैं जब उठती हूँ तो चाय वाय बन चुकी होती है. आई गो फ्रेशन अप एंड देन हम साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद कुछ चला जाता है. देन इट्स मी एंड जजू ओनली. तो हमारा दिन बहुत ही आराम से और पीसफुली जाता है. फिर मैं अपना सारा काम खत्म करती हूँ. आई डू झाड़ू, आई डू पोछा, आई डू डस्टिंग एंड क्लीनिंग, और सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ. तो आई फिनिश ऑल द वर्क जितना भी घर में होता है वो सब करने के बाद देन आई सिट डाउन एंड शूट these videos for you all. तो या इट्स वेरी चिल डे. और कभी कभी होता है मैं नहीं शूट करती हूँ उस दिन, में बैठ के सब काम खत्म करने के बाद या तो मैं सो जाती हूँ. लाइक इट्स माई फेवरेट थिंग टू डू. तो मैं सो जाती हूँ, तो 1-2 घंटा आराम से सोती हूँ. उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा आइडिएशन करती हूँ कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनाना है, व्हाट इज ट्रेंडिंग, लोग क्या देख रहे हैं, लोगों को क्या पसंद है, एंड एवरीथिंग. तो मैं वो थोड़ा सा R&D करती हूँ और फिर और आइडियाज़ लिखती हूँ. अगर ज़रूरत होती है तो मैं स्क्रिप्ट भी लिखती हूँ. और सब काम खत्म करके फिर शाम को जब कुछ आता है तो फिर हम खाना साथ में बनाते हैं मोस्टली. So yeah, this is my casual like everyday routine. So yes, if you want to see what I do in a day, then let me know in the comment section. I will make a video out of it. So you can enjoy that as well. So these are the 10 question which I think कि आप में से किसी के दिमाग में शायद हो या in future आपके दिमाग में आए. तो I might have answered them all. And if you have any other question for me, please comment down below. और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो please don't forget to share it with your friends. And if you like this video, then please hit the thumbs up icon. And I'm gonna see you in the next one. Bye bye.